Good afternoon, everyone. So in this tutorial, we are going to discuss home assignment 4. So अपनी assignments and solutions निकालो. Ready? I hope तुम लोगों ने अब तक assignment कर ली हो. Right? Alright. So the first question that we are going to discuss is question number 7. Right? Obviously, I need to solve this. Now the question is, if I open it up, right? ये cubes है और यहाँ पे अंदर square है. So definitely 6-degree equation बन जाएगी, right? I am interested कि quadratic बने या maximum cubic बन जाए. Right? इसके लिए what we usually do is observe something, and I think by looking at this equation, one thing is very certain. कि x square minus 1 है, right? ये factorization I think हमें class first से पता है. x minus 1 into x plus 1, right? इतनी tempting term दी है तुम्हें. तो first term पे आ जाओ. x square plus x minus 2. This is very easily factorizable. This is x minus 1 into x plus 2. x minus 1 का factor यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. चलो देखो, x square plus x minus 2. इसको ऐसे लिख दो, x minus 1 into x plus 2 whole cube. राइट, इसको फैक्टराइज कर दें. देन प्लस, अच्छा ये भी इजीली फैक्टराइजेबल है. तो एक फैक्टर क्या है? x minus 1 into 2x plus 1 and whole cube equal to 27 into x minus 1 into x plus 1 whole cube. तो इतनी टेम्पटिंग टर्म थी. तुम्हें जैसे ही दिखा यहाँ पे x minus 1 है, तुम्हें ये नहीं दिखा कि यहाँ पे भी x minus 1 है, यहाँ पे भी x minus 1 है. दिखना चाहिए था. अब ये होल क्यूब था ना, इसको ऐसे लिखेंगे, this cube into this cube, and then इसको लिख देते हैं this cube into this cube, and then cube and cube. अब क्या करें? x minus 1 cube, x minus 1 cube, x minus 1 cube. मैं ऐसा करती हूँ, इस टर्म को इस साइड ले आती हूँ. तो बन गया माइनस इक्वल टू 0. अब x minus 1 cube कॉमन आया, कॉमन ले लेते हैं. x minus 1 cube कॉमन, यहाँ क्या बचा? x plus cube, x plus 2 whole cube plus 2x plus 1 whole cube minus 27 into x plus 1 whole cube equal to 0. Now product of two quantities is 0. So either first is 0 or the second is. First is 0, as in x minus 1 whole cube equal to 0. So directly बोल दो x minus 1 equal to 0. यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई, x equal to 1. मुझे एक रूट तो मिल गया इस इक्वेशन का, राइट? अब सेकंड निकालना है. अब दिस कैन आल्सो बी 0. So as in x plus 2 whole cube plus 2x plus 1 whole cube minus 27x plus 1 whole cube equal to 0. Right? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. क्यूब सी है ना, एक बार खोल के देखो तो सही. क्यूबिक इक्वेशन नहीं बनेगी, बट वो भी सॉल्व हो जाती है, डिपेंड करता है. राइट? तो ओपन अप करते हैं इसको. So this is x cube plus 3 into x square into 2, 3a square b. राइट? इसको डायरेक्टली लिखो, 6x square plus 3 into x into 4, that is 12x plus 8 plus, now ये क्यूब भी ओपन अप कर देते हैं. This is 8x cube plus 3 into 4x square, so that is 12x square plus 3 into 2x into 1 square, so that is plus 6x plus 1 minus 27 into x plus 1 whole cube. ये तो याद होता है सबको, I mean ये मुझे भी याद है. So this is x cube plus 3x square plus 3x plus 1 equal to 0. Right? अब लाइक टर्म्स कंबाइन करें, ये बन गया 9 क्यूब. देन यहाँ पे x गलती कर दी मैंने, है ना? स्क्वायर था यहाँ पर. नहीं, ये स्क्वायर था. राइट? तो इनको कंबाइन करो. तो दिस इज प्लस 18x square plus 18x
then plus 9 minus 27 into x cube plus 3x square plus 3x plus 1 equal to 0. तुम बोलोगे ना ओपन अप क्यों नहीं कर रहे? ओपन अप करने से पहले देखो यार 9 है 18 18 9 27 में कॉमन फैक्टर दैट इज 9 पहले कॉमन लूंगी और बाहर फेंकूंगी. I mean उस साइड चला जाएगा वो. So this becomes 1, this becomes 2, then 2, then 1, then 3. अब ओपन अप करूंगी, राइट? तो x cube plus 2x square plus 2x plus 1 minus 3 into x cube minus 3x cube minus 3 into 3x square minus 9x square minus 9x minus 3 equal to 0. अब लाइक टर्म्स कंबाइन करें. This is minus 2x cube minus 7x square minus 7x minus 2 equal to 0. अब सब में से माइनस कॉमन लेके प्लस बना देते सबको, राइट? अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी. रियली इसका भी एक रूट इजीली दिख रहा है. देखो यहाँ पे 2x क्यूब है, यहाँ पे 2 है. अगर 2 की जगह -2 होता तो ये कैंसिल आउट हो जाते, राइट? मतलब x को -1 सब्स्टिट्यूट करूंगी, so that means x plus 1 फैक्टर होगा इसका. -1 होता है x plus 1 फैक्टर होगा. अब दूसरा फैक्टर लिख लेते हैं. अब डिवाइड करना है. आई नीड टू डिवाइड दिस बाय x plus 1. ठीक है, करते हैं. तो x को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2x स्क्वायर से. देन यहाँ पे 2x स्क्वायर बन गया. मुझे क्या चाहिए था? 7x स्क्वायर. so that means plus 5x square plus 2x square 7x square बन गया. अब प्लस 1 और यहाँ पे 2 है, so that is plus 2 0, राइट? तो फर्स्ट से 0 से तो आना ही था -1, वो तो पता ही है. अब सेकंड भी इजीली फैक्टराइजेबल है. क्यों? इसको लिख लें ऐसे 2x plus 1 into x plus 2 equal to 0 और यहाँ पे था x plus 1. तो यहाँ से क्या मिला मुझे? -1/2 एंड -2 और यहाँ से मिला था 1. समझे सारे? That's it. Now the next one. That is question number 10. An interesting question. Again observation based. राइट इट डाउन. एक बार देख लो क्वेश्चन को, क्या पता तुम्हें अब ऑब्जर्वेशन हो जाए. नेवर नो. जब प्रेशर होता है तो ज्यादा अच्छे ऑब्जर्वेशन होते हैं. So question number 10 now. X into x plus y plus z equal to 1 and y into x plus y plus z equal to 4 and z into x plus y plus z equal to 9. Right. Obviously x, y, z की values निकालनी है. We satisfy these three equations. Now questions को solve करने से पहले obviously observe करना, right? Easiest observation क्या है? x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z. That means ये term तीनों equations में crop up हो रही है. Same term crop up हो रही है तीनों equations में. क्या करेंगे? या तो add करेंगे या multiply करेंगे equations को. अब बताओ मल्टीप्लिकेशन से बेनिफिट है कि ऐड करने से बेनिफिट है? योर डिसीजन. मल्टीप्लाई करें. अब देखो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे x plus y plus z क्यूब बन जाएगा. इससे ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं. कर लेना.
क्या पता उससे बेनिफिट हो जाए। नाउ मैं क्या करती हूँ, मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ। क्यों? x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन आने वाला है। अब x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में क्या बचा होगा, x प्लस सेकेंड इक्वेशन में y प्लस z, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। अब हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, राइट हैंड साइड को भी करना है, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 14। अच्छा ये बना क्या, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर ही तो बन गया। So this is x plus y plus z whole square, right? तो मेरे पास x plus y plus z की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस रूट 14 दोनों आएंगे, राइट? मैं केसेस बना देती हूँ। फर्स्ट केस x plus y plus z is रूट 14, राइट? इसके अंदर सॉल्व कर रही हूँ। अब मुझे तो x y z की वैल्यूज निकालनी है ना। अब एक बात बताओ, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये वैल्यू अभी तो निकाली तुमने, तो यहाँ पे पुट कर दो, x इंटू ये क्या था रूट 14 इक्वल टू 1, यहाँ पे तो x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 1 बाय रूट 14। तो y की वैल्यू निकालनी है, y इंटू अब यहाँ पे रूट 14 दोबारा पुट कर दो इक्वल टू 4, y की वैल्यू भी आ गई 4 बाय रूट 14, एंड z की वैल्यू क्या होगी, it will be 9 by root 14. So one set of solution is 1 by root 14, comma 4 by root 14, comma 9 by root 14. This is one set. ट्रिपलेट है ये, राइट? एक तुम्हें यहाँ से मिला, एक जब तुम कंसिडर करोगे माइनस 14 में लगे, यू गेट अनदर सेट। हाउ सिंपल द क्वेश्चन इज, just observation करनी थी and the answer is here. All right, so the next one is question number 11, an interesting one again. तो ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, so I don't think तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है, but still let's discuss it one. All right, so question number 14. No, question number 11. So this is x plus y plus z equal to 1. Then x equal to 1. X cube plus y cube plus z cube equal to 13. And then x, y, z equal to 1. Right? Equation को solve करना है. Now, obviously यहाँ पे क्यूबिक है, यहाँ पे भी क्यूबिक है, ये लीनियर है। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ इन टर्म्स ऑफ y, फिर यहाँ पे पुट करती हूँ y z इन टर्म्स, यहाँ पे एक रिलेशन है, it will become quite complicated, right? तो इट्स बेटर है कि कुछ ऑब्जर्व ही कर लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, x plus y plus z equal to 1. Again, x plus y plus z पता है तुम्हें, sum of quantities, all right? यहाँ पे क्या पता है, x y z प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, सम पता है, प्रोडक्ट पता है। अगेन इट साउंड फेमिलियर, 3 क्वांटिटीज का सम पता है एंड प्रोडक्ट पता है। अगर समहाउ तुम्हारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज टेकन 2 एट अ टाइम है, क्या बनेगा, इट विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन। आई मीन यू कैन राइट द क्यूबिक इक्वेशन। अब तुम बोलोगे ना हमारे पास तो है नहीं, बेसिकली हमारे पास क्या नहीं है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। दिस इज आपको एक बात बताओ, ये रिलेशन गिवन है ना, ये रिलेशन गिवन है, इन तीनों रिलेशन को यूज करके इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे आप। क्लास 9 आइडेंटिटीज सब काम आएंगी,
कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, राइट, इसकी वैल्यू नहीं पता, बट उसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एंड माइनस 2x माइनस 2yz माइनस 2zx, और साथ में आता है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, डायरेक्टली ऐसे लिखिए माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, इतनी बार तो बच चुके हैं, ऐसे लिखना शुरू करो। अब इसकी वैल्यू क्या थी, 13 माइनस 3 इंटू, ये तो 1 है, इक्वल टू, अगेन दिस इज 1 एंड ये हो गया 1 स्क्वायर एज इन 1 माइनस 3 इंटू, अब इसकी तो वैल्यू निकालनी है बेसिकली, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट। अब ये क्या बन गया, 13 माइनस 3 दैट इज 10, राइट, 10। अब 1 को ले आओ, ये बन गया 9, तो बेसिकली एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या बन गया, माइनस 3, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं मेरे को, राइट, ठीक है। अब आगे कैसे प्रोसीड करें, नाउ मुझे सम ऑफ क्वांटिटीज पता, मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज टेकन टू एट अ टाइम भी पता, एंड मुझे प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज भी पता। बेसिकली एक्स वाई जेड अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स मान लूं, मुझे सम ऑफ रूट्स पता, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज आल्सो नोन, राइट, ठीक है, आई कैन मेक यूज ऑफ इट। अब मुझे बस एक क्यूबिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स है एक्स वाई एंड जेड। अब एक बात बताओ, इफ x is a root that means the factor will be capital X। अब obviously मैं जो अपनी क्यूबिक इक्वेशन बनाऊंगी वो x y z में तो बना नहीं सकती, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं कैपिटल X में बनाती हूँ, राइट। So again x is a root, then the factor will be capital X minus x, and the second factor will be capital X minus y, and the third capital X minus z. Now this is a cubic equation whose roots are x, y and z, right? अब यूटिलाइज करते हैं, ओपन अप करते हैं, बिकॉज मैं ओपन अप करूंगी कोफिशिएंट्स एंड रिलेशंस पता है मुझे, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स तो पता ही है ना, तो लेट्स ओपन इट अप। जैसे ही ओपन अप करूंगी ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, राइट, कैपिटल एक्स क्यूब एज इट इज ऑब्वियसली। अब इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है, दैट इज 1, तो मिल गया कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी वैल्यू तुमने निकाली दैट इज माइनस 3, तो माइनस 3 एक्स माइनस इसकी वैल्यू भी तुम्हें पता है माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बात बताओ, इसका रूट दिख नहीं रहा तुम्हें, ये क्यूबिक इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाती है, राइट। तो जैसे तुम्हारे पास क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व हुई, बेसिकली तुम्हारे पास एक्स वाई जेड आ गया, बट बी केयरफुल, एक्स की एक फिक्स वैल्यू नहीं है, वाई की भी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, तो तुम्हें सारी अरेंजमेंट लेनी पड़ेंगे उनकी, ऑलराइट। आई थिंक इसके आगे तो तुम कर ही लोगे, आंसर ही लिखना है इसके बाद तो। Cool. Then the next is question number 13. Again, an interesting one. I think ये वर्कशीट तुम्हें काफी इजी लग रही होगी, इक्वेशन तो सॉल्व करनी है, and you people are quite good at solving equations. Right. So question number 13. Let's read that. So this is x square y cube plus x cube y square
equal to 12, then x square y cube minus x cube y square equal to 4, right? अब clearly 50-degree equation ऑब्जर्वेशन तो करनी पड़ेगी. इनफैक्ट जब भी इक्वेशन मिले ऑब्जर्वेशन तो कर ही लिया कर. यू नेवर नो हाउ सिंपल द प्रॉब्लम कैन बिकम, राइट? तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, काफी टर्म्स कॉमन नहीं है. एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो वाई स्क्वायर है यहाँ पे वाई स्क्वायर है. हाँ बताओ यहाँ से कौन सी चीज कॉमन आ रही है? यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है. यहाँ क्या बचा? वाई प्लस एक्स इक्वल टू 12, राइट? अब नेक्स्ट में आ जाता है, यहाँ से भी तो कॉमन आ रहा है. एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है एंड वाई स्क्वायर. यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड क्या बचेगा? वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4, राइट? तो बेनिफिट हो रहा है. एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर यहाँ पे भी है. अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों इक्वेशंस को तो कैंसिल आउट ही होने वाले हैं. प्लीज गेट कैंसिल्ड आउट. अब तुम बोलोगे मैम नॉन जीरो कैसे है, हमें कैसे पता? एक बात बताओ, एक्स जीरो हो सकता है, वाई जीरो हो सकता है? नो, राइट? तो कैंसिलिंग में डजंट सीम लाइक के कोई प्रॉब्लम आने वाली है. तो लेट्स डिवाइड, दो इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं. यहाँ क्या बचेगा? y प्लस एक्स डिवाइड बाय y माइनस एक्स इक्वल टू 12 बाय 4 दैट इज 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस इज y प्लस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 3x, राइट? सो दिस बिकम्स 4x इक्वल टू 2y और आई कैन से y इक्वल टू 2x. एक रिलेशन मिल गया. अब तुम बोलोगे मैम इस रिलेशन का क्या करें? ये रिलेशन कहीं भी यूज कर लो. इट माइट बी बेनिफिशियल बिकॉज सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी. तो लेट्स सी, फर्स्ट वाले में पुट करके देखते हैं. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर. अब ऑब्वियसली मैं y को पुट कर रही हूँ, राइट? तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो एज इन 2x, ये इंटू है, इक्वल टू नहीं है, इंटू 2x प्लस एक्स इक्वल टू 12, राइट? अब ये 2x होल स्क्वायर बन गया 4x स्क्वायर, राइट? So this becomes 4x cube into 3x square equal to 12. एक बात बताओ, ये तो कैंसिल ही होने वाले हैं. एंड एक्स रेज पावर 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा. एक्स रेज पावर 5 इक्वल टू 1 रियल रूट चाहिए थे. अच्छा वो रियल नंबर सोचो जिसकी फिफ्थ पावर 1 हो. ये 1 तो एक ही दिख रहा है, 1 ही होगा. रियल की बात कर रहे हैं अभी हम. कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो हम 11th में पढ़ेंगे. So there will be only one real root which will be 1, right? x1 आ गया, so that means y क्या होगा? 2. That's it. That is it. This simple observation based question. तुम देखिए लो, लेंथ देख लो तुम क्वेश्चन की. Just you observe and length कितनी reduce हो जाती है. So observation plays a very important role, especially in Olympiad problems. Alright. So the question number 15. Now let's discuss question number 15. Alright. So question number 15 is x raised to 4 plus y raised to 4 equal to 82 and x minus y equal to 2. Right? Now,
ऑब्वियसली फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, बट ये लीनियर इक्वेशन है। इनफैक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन दिख रही है तुम्हें क्या करने है। अब तुम बोलोगे मैम अगर हमने सब्स्टिट्यूशन कर भी दी, फोर्थ डिग्री इक्वेशन, एक तो फोर्थ बार करना नहीं आता हमें। ऑलराइट, स्टेप बाय करते हैं। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन करो। किसको सब्स्टिट्यूट करो? मैं x को कर देती हूँ, x इक्वल टू वाई प्लस टू, राइट। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, so that is y plus 2 raised power 4 plus y raised power 4 equal to 82। अब तुम बोलोगे मैम इसको एक्सपैंड कैसे करें, हमें तो फोर्थ बार करनी आती नहीं, क्यूब तक आता है, राइट। इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर करना तो आता है। तो y plus 2 होल स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसको स्क्वायर करना है, प्लस y raised power 4 equal to 82। तो a plus b plus c होल स्क्वायर करना आता है ना हमें, कैसे आइडेंटिटी लगा दो। So this becomes y raised power 4 plus 16x square plus 16 plus 2 into y square, ये y होना चाहिए, ये y होना चाहिए, alright, 2 into y square into 4y, so that is 8y cube plus 2 into 4y into 4, so that is 32y plus 2 into y square into 4, so that is 8y square plus y raised power 4 equal to 82, right? Like terms combine करें, given गया 2y raised power 4, then plus 24y square plus 32y and equal to 16, but 16 वहाँ पे चला जाएगा, so it will be 66 hopefully, right? So calculation error, let's see, this is seems so, right? So this is my equation, जिसमें से 2 कॉमन आउट आ रहा है, ये 2 बन गया यहाँ पे 12 बन जाएगा, and here it will be 16 and then 33, right? तो मेरी एक quadratic equation बनी y raised power 4 plus 12y square plus 16y minus 33 equal to 0, right? अब ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमें मिनिमम मेथड आते हैं, राइट। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 1 है और ये नॉन जीरो है, ये से रूट ढूंढना शुरू करते हैं। दैट मीन्स इसके फैक्टर्स ये तो चेक करने हैं मुझे, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 11 एंड प्लस माइनस 33 ऑल्सो, राइट। अब इनमें से तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएंगे फैक्टर्स एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट, right? This was one method to proceed. Now there's a second method which is quite important and वो शायद से तुम्हारे दिमाग में ना आया, might be the case, but let's learn a new method to tackle such a problem. Let's see. ये वाला मेथड तो लगा ही लिया होगा तुमने, आंसर भी आ होगा, right? Now let's learn something new now. Alright. Now यहाँ पे x raised power 4 plus y raised power 4 है, right? यहाँ पे x minus y equal to 2 दे रखा है। The thing is, ये जो टर्म्स होती हैं x raised power 4 plus y raised power 4, right? मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी, अगर मैं x की जगह सपोज a plus b पुट करूँ, right? एंड y की जगह a minus b एंड फोर्थ पार्ट नहीं करते, अभी स्क्वायर करते हैं, राइट? उनको एक बेनिफिट होता है, एक टर्म यहाँ पे 2 भी होती है, यहाँ पे माइनस 2 भी होती है, उनको ऐड करते हैं तो टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, राइट? तो अज्यूमिंग कि फोर्थ पावर में भी कुछ ऐसा होता होगा, टर्म्स कुछ कैंसिल हो जाती होंगी, अगर हमारे पास कुछ ऐसा होगा a प्लस बी a माइनस बी जैसा, राइट? और हमें दे रखा है x रेज का 4 प्लस y रेज का 4। तुम बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटीज है, कैंसिलेशन की कैसे बात कर सकते हो? एब्सोल्युटली राइट, बट
उसके साथ में एक रिलेशन भी गिवन है, राइट? x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमने ऐसे करते हैं, x को लिख लेती हूँ u प्लस 1 एंड y को लिख लेती हूँ u माइनस 1। या तुम बोलोगे मैम ये कैसे लिख लिया? देखो मुझे फोर्थ पार करनी है, राइट? दो टर्म्स होनी चाहिए, एक्सप्रेस करूंगी इन टर्म्स ऑफ टू टर्म्स, ओपन अप करूंगी और टर्म्स कैंसिल करूंगी। अब दो टर्म्स तो होनी चाहिए, इनफैक्ट दो टर्म्स ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे बीच में प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो। मुझे ये रिलेशनशिप दे रखा है कि उनका डिफरेंस 2 है, तो मैंने x को मान लिया u प्लस 1, y को मान लिया u माइनस 1। जैसे ही मैं x माइनस वाई करती हूँ मुझे मिल जाएगा 2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आई डोंट थिंक अभी तुम्हारे माइंड में आया होगा, बट कीप दिस स्टेप इन योर माइंड। मे बी तुम बोलो मैम इस क्वेश्चन में तो लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। इट्स अ टेक्निक, इट्स अ मेथड, यू कीप इट इन योर पॉकेट। जब यूज करने का टाइम आएगा तब यूज कर लेना, जरूरी थोड़ी ऐसे क्वेश्चन में यूज करना है, किसी और क्वेश्चन में लग जाएगा, राइट? तो कीप इट, ये यूज हो सकता है, इट्स जस्ट लाइक मनी, you keep it in your pocket, it depends on you where and how you have to use it, but you should have some tools and some methods with you, right? तभी तो ओलंपियाड का पेपर देने जाओगे। तो मैंने ये सब्स्टिट्यूशन कर दी, अब करते हैं। तो x की जगह यहाँ पे आ गया u प्लस 1 रेज़ पावर 4 प्लस u माइनस 1 रेज़ पावर 4 इक्वल टू 82, राइट? अब अगेन फोर्थ पावर करनी नहीं आती, यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट? So let's open it up. This is u square plus 2u plus 1 whole square into u square plus minus 2u plus 1 whole square equal to 82, right? अब open up कर देते हैं, so this becomes 2u raised to 4 plus 4u square plus 1 plus 2 4u cube plus 4u plus 2u square, राइट? ओपन अप हो गया ये वाला, अब इसको ओपन अप करते हैं, प्लस u raised to 4 plus 4u square plus 1 minus 4u cube minus 4u plus 2u square equal to 82। अब ये ध्यान से ओपन अप करना, गलती हो जाती है, राइट? अब कुछ टर्म कॉमन है जो कैंसिल आउट होने वाली है, 4u क्यूब माइनस 4u, अच्छा माइनस 4u माइनस 4u, राइट? अब लाइक टर्म्स को करेक्ट करें, यहाँ पे 2 रेज़ पावर 4 2 रेज़ पावर 4 ये बन गया 2u रेज़ पावर 4, देन यहाँ पे है 4 6 हो गया, 6 and 6 that is 12u square, then 1 1 plus 2 and यहाँ पे minus 80 equal to 0। 2 का फैक्टर कॉमन आउट है, तो 2u raised to power 4 plus 6u square minus 40 equal to 0। अब तुम बोलोगे मैम ये भी तो अभी आपने बाई क्वालिटी की बनाई है, पहले भी बाई क्वालिटी की बनी थी। ये बाई क्वालिटिक रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है, राइट? उसमें तो तुमने हिट एंड ट्राई से रूट्स निकाले और निकल गए, अगर नहीं निकलते तो इसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, चाहे जैसी मर्जी गंदी इक्वेशन क्यों ना हो, यू कैन इजीली सॉल्व दिस इक्वेशन बिकॉज दिस इज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। सी मेन एम इन सॉल्विंग द इक्वेशन इज टू रिड्यूस इट टू क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गई तो प्रॉब्लम इज डन, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट नो मैटर व्हाट। सो दैट्स इट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है, u रेज़ पावर 4 को सब्स्टिट्यूट कर दो t स्क्वायर, या हम u रेज़ पावर स्क्वायर u स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t से 1 या t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 40 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स दिखते हैं, दैट इज t प्लस 10 इंटू t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t इज माइनस 10 और इट इज 4। अब ऑब्वियसली u स्क्वायर था, तो u स्क्वायर इज माइनस 10
एक बात बताओ, u स्क्वायर इक्वल टू -10 तो रियल रूट मिलेगा तुम्हें? एब्सोल्युटली नॉट. So u square is equal to 4, so u is equal to plus minus 2. That's it. आ गया. Right? आगे तुम put करोगे and you will be able to get the answer. Right? So this is another way to tackle such kind of problem. वहाँ पे x raised power 4 plus y raised power 4. तुम्हारे पास क्या पता कुछ टाइम में x raised power 12 plus y raised power 12 आता है. Right? And ये रिलेशन इतना अच्छा ना हो, ये सब्स्टिट्यूशन लग रही हो. So keep this in your mind. This is your trump card, you can say. Somewhere down the line, this might be used. Alright. So that is it for today's tutorial. And no major announcements, I guess. Right? And I'll see you again on Tuesday. Thank you and I'll see you next time.